Chapter 2 Acid, Bases and Salts, and in this video we'll discuss about acids. So first of all we must know what are acids. So acid word is actually come from the Latin name acidus which means sour taste, खट्टा चीज़ जो खट्टे टेस्ट होते हैं. तो सबसे पहले जो citrus fruits, lemon juice, vinegar and grape juices have sour taste and they are acidic in nature, and you are aware of that the acids change blue litmus to red and they are colorless with the phenolphthalein. So this blue litmus and this phenolphthaleins are the indicators. Indicators means जो हमें इंडिकेट करें कि वेदर एसिड है सॉल्यूशन या बेस है. और बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे हम कर्ड यूज़ करते हैं, टैमरिंड, लेमन, all they are sour in taste and they have acids. Curd have lactic acid, tamarind में tartaric acid होता है. Arrhenius was the first who classified on the basis of what are the acids in chemical, what are the common in all the acids. So students, he defined acids which furnishes H plus ion in the aqueous solution. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने HCl लिया है, तो HCl को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इट फर्निशेस H प्लस एंड Cl माइनस आयन. एंड स्टूडेंट्स दिस H प्लस आयन इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है. तो ये इमीडिएटली अनस्टेबल का मतलब कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन इन H plus ion. So it immediately reacts with water and forms H3O plus, and this is हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, पर यहाँ पर ये नोट करना है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच फर्निशेस H प्लस आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन. मतलब कि HCl में आपने देखा कि जब ये आयन दे रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव आयन सिर्फ H प्लस आयन है. यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट ऑल्सो गिव्स H प्लस आयन. ये H प्लस आयन भी देता है, बट विथ H प्लस आयन इट ऑल्सो फर्निशेस Na प्लस आयन. तो इट इज़ नॉट an acid. Acids are those substances which furnishes only H plus ion in the aqueous solution. Now we'll discuss about the classifications of acids. There are so many classifications. First we'll discuss about based on their sources. So on the basis of the sources, acids are mainly two types: organic acids एंड मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं. जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा है मैथेनोइक एसिड. इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड भी है. आप एक नेटल प्लांट जो हर्बेसियस वाइल्ड प्लांट है उसके लीव्स में जो हेयर्स होते हैं उसकी स्टिंग में मैथेनोइक एसिड होता है. And the ant sting also have methanoic acid या formic acid कह सकते हैं. This is a second example of organic acid I have taken. Acetic acid. Acetic acid जो सिरका में प्रेजेंट होता है, जिसको फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो the scientific name of this acetic acid is ethanoic acid. And citric acid present in all the citrus fruit, tartaric acid, they are all actually extracted from the living organisms, plants or animals. So they are called organic acids. Second type of acids on the basis of sources which are obtained from rocks and minerals. तो इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं. जैसे ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid. There are many more, carbonic acid and phosphoric acid. Now we'll classify on the basis of basicity. तो basicity क्या है? Basicity actually the number of hydrogen ion an acid molecule furnishes in aqueous solution. एक्वस सोल्यूशन में एक एसिड का मॉलिक्यूल जितने H प्लस आयन देगा उसको हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे HCl. तो HCl गिव्स 1 H प्लस आयन. ये एक H प्लस आयन आपको यहाँ पर फर्निश कर रहा है. तो मोनो मीन्स 1. सो HCl एंड HNO3 they are the example of monobasic acid. Second is dibasic acid. As the name suggests, di means two. So these examples, these acids will furnish 2 H plus ion. You can see here H2SO4 sulfuric acid. When dissolved in water, it furnishes 2 H plus ion. So this is example of dibasic acid. Similarly, carbonic acid, this is H2CO3. It also furnishes H2 हाइड्रोजन आयन. यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन फर्निश करेंगे ना, ये इमीडिएटली वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम H3O प्लस मीन्स हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है क्योंकि H प्लस अनस्टेबल है. सिमिलरली ट्राई मीन्स 3. So tribasic acids are those acids which furnishes 3 hydrogen ions in acid solution. एक मॉलिक्यूल ये फॉस्फोरिक एसिड का 3H प्लस आयन देता है और ये ट्राइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है. पर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन से. जैसे आपने देखा है H3PO4 जो फॉस्फोरिक एसिड उसमें 3 हाइड्रोजन एटम है एंड इट इज ट्राइबेसिक एसिड. बट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट इंडिकेट द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. यहाँ आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड में 3 + 1 4 हाइड्रोजन एटम है बट बेसिसिटी इज ओनली 4 हाइड्रोजन है पर बेसिसिटी इज ओनली 1 बिकॉज इट फर्निशेस ओनली 1 हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन. ये एक एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन में डिसोसिएट होता है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी सिर्फ 1 है. ये मोनोबेसिक एसिड है. और एक और यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन एटम्स कंटेन करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दे विल ऑल बी एन एसिड. लाइक दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज मेथिल अल्कोहल. तो एसिड की एक यहाँ पर हम और स्पेसिफिक फीचर्स समझेंगे कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब कि देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो अब आपने यहाँ जो एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HNO3 का वाटर एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया, उसमें आप अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो इट passes electricity. But glucose and alcohol, they are not electrolytic substance, and when they are dissolved in water, they do not dissociate into hydrogen ion, so they are not acids. Now, on the basis of the ionization, ionization क्या होता है? When we dissolve any electrolyte or any ionic compound into water, they dissociates into their ions. वो ions में break हो जाते हैं, तो इसी को हम ionization कहते हैं. ठीक है,
breaking down into ions in aqueous solution is ionization. HCl को या जो मिनरल एसिड्स होते हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट डिसोसिएट्स इनटू देयर आयंस कंप्लीटली, ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. सपोज अगर आपने यहाँ पे 10 HCl के मॉलिक्यूल लिए हैं और उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको 10 H+ आयन और 10 Cl- आयन मिलेंगे. तो ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. एंड ऑलमोस्ट ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है but it is not a strong acid, it is a weak acid. ठीक है, weak acids क्या होते हैं? I have taken the example of weak acid. तो weak acid को जब water में dissolve करते हैं हम तो ये चेंज हो जाता है H+, ये डिसोसिएट होता है CH3 COO एसीटेट माइनस और H+ आयन में. बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इट डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इनटू देयर आयंस. सपोज जैसे आपको HCl में मैंने बताया था कि जब HCl को हमने 10 मॉलिक्यूल्स लिए उसके वाटर में डिसोसिएट किया तो डिसॉल्व किया तो वो 10 H+ आयन और 10 Cl- आयन में ब्रेक हो गया. लेकिन जब एसिटेट आयन के अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो सिर्फ 2 या 3 एसिटेट आयन और H+ आयन में डिसोसिएट होंगे. इनका जो आयोनाइजेशन है ये कंप्लीट नहीं होता. दे डू नॉट आयोनाइजेस कंप्लीटली इनटू देयर आयंस. ये मॉलिक्यूल फॉर्म में भी रहते हैं. मतलब एसिटिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें ये एसिटेट आयन और H+ आयन के साथ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे. इनका आयोनाइजेशन पार्शली होता है. तो दीज एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स एंड मोस्टली ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, तो कॉन्सेंट्रेशन तो हमने क्लास 9 में भी देखा था कि जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं अलग अलग अमाउंट, तो उसका जितना अमाउंट हमने डिसॉल्व किया है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है. तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा होगा? जो प्योर फॉर्म में होगा. आप जानते हैं कि HCl को जब प्योर फॉर्म में लिया जाता है तो वो फ्यूम्स होता है, ड्राई HCl एकदम होता है. और इन ड्राई HCl डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ एसिड क्योंकि वो H+ आयन फर्निश नहीं कर पाता. अब उसको जब हम एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हम वाटर, जितना वाटर हमने लिया अब उसमें हम एसिड ऐड करते जाते हैं. तो अगर अमाउंट ऑफ एसिड इज़ मोर, बहुत ज़्यादा है और वाटर कम है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा. लेकिन अगर अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ज़्यादा है और एसिड का अमाउंट कम है, द लो परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इट विल बी अ डाइल्यूट एसिड. ठीक है. और ये जब हम एसिड में वाटर मिक्स करते हैं उसे हम डाइल्यूट करते हैं. दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. एंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर आपने बीकर में एसिड लिया है और उसमें वाटर ऐड करते हैं तो इट में स्प्लैश एंड इट इज़ वेरी रिस्की. सो व्हेनेवर डाइल्यूशन इज डन, फर्स्ट वाटर इज टेकन इनटू बीकर और उसमें स्टिरिंग करते हुए कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग के साथ एसिड ऐड करते हैं ताकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो हीट इवॉल्व हो वो बहुत एक साथ ज़्यादा ना हो और कोई नुकसान ना हो. एंड वी ऑल नो दैट एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल while handling the acid.